अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से शुरू होने वाली पाक भारत कशीदगी 6 और 7 मई को अस्करी तसादुम में बदल गई और फिर 10 मई को होने वाले सीज फायर के बाद सिफारती जंग में बदल गई है। अब दोनों ममालिक इसी सिफारती लड़ाई में मसरूफ़ हैं। भारत के 7 सिफारती वफूद गुज़िश्ता 10-11 दिनों से मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं और भारतीय मौक़िफ़ पर हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के दौरों के बाद कल से पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ने भी सिफारती मुहिम शुरू कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका में मुलाकातों में मसरूफ़ है। साथ ही आज वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने रूस में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है और सदर पुतिन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त उनके हवाले कर दिया है। जबकि अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी वफ़द ने आज अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांसीसी मंदूब से मुलाकात की है। इससे पहले सिफारती वफ़द ने कल अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के मुस्तकिल मंदूबीन से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात हुई। साथ ही पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुंतखब रुकन ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो ने OIC के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान वो नहीं है जैसा कि भारत अपने मीडिया और दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। Use its policy of collective punishment, if it continues to victimize the people of Kashmir, if it continues to use the wolf whistle of terrorism to demonize an entire population, then unfortunately that environment will create more cannon fodder for terrorists to use tomorrow for their nefarious designs. So these are the 3 basic agenda items that we are appealing for, that we seek your assistance with, is to convince our neighbor to act like the great power it envisions itself as, and not like a spoilt child who cries wolf. If they have evidence, present that evidence. I lost my mother, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, to terrorism. I will go and catch those people myself if they're within my territory. But the fact of the matter is that in this case, they are not. As long as they continue with this politicization, it will frustrate the genuine efforts of Pakistan. It will frustrate the genuine efforts of members of this country who face this menace within their borders. The politicization of terrorism undermines the fight against terrorism. I want to defeat terrorism. The political leadership in Pakistan, the military leadership in Pakistan today, all of us have gone through the fire, if it were, as far as this issue is concerned. On the political front line, the political forces have faced these beasts, have called them out and paid a heavy price. On the military side, our military leadership have faced these beasts on the battlefield. They fought them in South Waziristan. They fought them in North Waziristan. They've come up through this conflict. There is no sympathy in any aspect, in any corner of the Pakistani state for such groups. Pakistan is not the caricature that India would like to present on their media and before the world. And we look forward to working with them, to working with the international community, to address the issue of terrorism, to address the issue of Kashmir, to restore the Indus Water Treaty and establish peace in South Asia. खुद भारत में भी पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली को पजीराई मिल रही है और मोदी हुकूमत को अपने ही अवाम और तज्जियाकारों से ये ताने पड़ रहे हैं कि भारत के 7 सिफारती वफूद अलग अलग ममालिक में जाकर जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान का एक ही सिफारती वफ्द एक ही मुल्क में कर रहा है। एक तज्जियाकार ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि भारत ने 7 अलग अलग सिफारती वफूद गियाना, पनामा, सियरा लियोन और स्लोवेनिया जैसे ममालिक में भेजे जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन हैं और पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिर्फ एक ही वफ़द न्यूयॉर्क भेजा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम 15 ममालिक से वहीं मुलाकातें कर रहा है। इसी तरह कनाडा में 15 से 17 जून को होने वाली G7 समिट में भारत को बतौर मेहमान मुल्क शिरकत के लिए दावतनामा ना मिलने पर मोदी हुकूमत पर तनकीद का एक और दरवाज़ा खुल गया है। इसे सिफारती ब्लडर करार दिया जा रहा है और भारत में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस केरला ने अपनी एक तंजिया पोस्ट में G1 लिखा और एक पोस्टर शेयर किया है और लिखा है कि थैंकलेस G7 और G20 को उनके सियासी खेल में शिकस्त देने के लिए रद्द-ए-अमल के तौर पर हमारे विश्वागुरु नरेंद्र मोदी जी G1 शुरू करेंगे और किसी और को उसमें शिरकत की इजाज़त भी नहीं देंगे और ये एक और मास्टर स्ट्रोक लम्हा होगा।
मगर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि मोदी हुकूमत के हालिया फैसलों, इकदामात, बयानात और खामोशी पर तकरीबन तमाम ही भारतीय अपोजिशन जमातें कड़ी तनकीद कर रही हैं और बार बार मुतालबा कर रही हैं कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उठने वाले सवालात का जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म मोदी पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लें। आज कांग्रेस समेत भारत की 16 अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का दिल्ली में इजलास हुआ, जिसमें एक मुश्तरका खत के जरिए वज़ीर आज़म मोदी से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। इजलास के बाद अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट का इजलास न बुलाने और सीज फायर के हवाले से मोदी हुकूमत की खामोशी पर कड़ी तनकीद की। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? साथ ही कांग्रेस सदर ट्रंप के सीज फायर के दावों और वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वज़ीर आज़म मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वज़ीर आज़म मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। सिर्फ यही नहीं, भारतीय ओपोजिशन ये सवाल भी उठा रही है कि अगर सीज फायर ट्रंप के कहने पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया था तो इसका मतलब है कि भारत जंग जीत रहा था, तो फिर क्यों हमने जंग रोकी? जंग जारी रहने देते। मगर अगर पाकिस्तान सीज फायर की दरख्वास्त नहीं कर रहा था तो भारतीय हुकूमत का दावा गलत है। सीज फायर का जो मुद्दा है, हम लोग के जो देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका मैंने एक बयान पढ़ा कि सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर, उनकी पहल पर किया गया। तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था, इसका मतलब है कि सेना वाले ठीक कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को हरा रहे थे, तभी तो पाकिस्तान डर के मारे सीज फायर करना चाह रहा था। तो अगर पाकिस्तान सीज फायर चाह रहा था तो तुम काहे माने भाई? 2 दिन और चलने देते, सेना वाले मार के ठीक कर देते उनको। और अगर पाकिस्तान वाले सीज फायर नहीं चाह रहे थे तो जो आप दावा कर रहे हैं वो गलत है। अब सीज फायर कर लिए तो फिर आके जनता काहे बेवकूफ बना रहे हैं? आपके सामने है कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उसके बाद अब सिंदूर का डिबिया बांटने से तो कुछ होगा नहीं। सवाल अपनी जगह, तुकबंदी कर देना, 22 मिनट में बदला ले लिया। अरे भाई 2 दिन चल देने थे तो 22 मिनट में जब बदला ले सकते हैं तो ये भाषणबाजी करना, गरम सिंदूर पता नहीं कहाँ खोल के, मेरे कहीं कढ़ाई वढ़ाई ना पलट जाए मोदी जी की, कोई सिंदूर कहीं पलट जाए, कहीं इधर उधर फैल जाए। मतलब देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है? जितना खर्चा युद्ध में नहीं हुआ उतना मोदी जी ने अपने प्रचार पे खर्च करवा लिया। मगर जहां मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदों के इन सवालात का सामना करने से गुरेज कर रही है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुब्बुल वतनी की बहस को एक और नहज पर ले गई है। पहले बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रही थी, मगर अब बराह रास्त भारतीय मुसलमानों को ही निशाने पर रख लिया है। मोदी हुकूमत अब यह बयानिया बना रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पर तनकीद कर रहा है वो असल में भारतीय मुसलमानों को खुश कर रहा है ताकि उसे मुसलमानों का वोट बैंक मिल जाए। और ये बात बीजेपी के किसी कारकुन या मकामी रहनुमा ने नहीं कही है, बल्कि मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने कही है। गुज़िश्ता हफ्ते नरेंद्र मोदी के मशरकी बंगाल के दौरे और उनके बयानात पर रद्दमल देते हुए वहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि औरतों को सिंदूर देकर उनकी बेइज्जती ना करें, अगर आपको सिंदूर देना ही है तो अपनी बीवी को दें। और आज ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए भारतीय वज़ीर दाखिला और नरेंद्र मोदी के करीबी साथी अमित शाह ने यह कह दिया कि मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर की मुखालफत की। Please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband, but PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया।
दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया, मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी, केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। एक तरफ बीजेपी भारत के तमाम ही मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर के मुखालिफिन और पाकिस्तान के एजेंट्स के तौर पर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ मोदी हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक में जो 7 सिफारती वफूद भेजे हैं उनमें मुसलमान लीडर्स भी शामिल हैं, जो खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का बयानिया पेश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भारतीय सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने बीजेपी हुकूमत के मुसलमानों से मुतालिक इसी दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाया था, पर्दा उठाया था कि बीजेपी भारत के अंदर मुसलमानों से कैसे सलूक करती है और मुल्क से बाहर कैसे उनके रहनुमाओं का रवैया बदल जाता है। इसी तरह भारत के अंदर पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग पार्लियामेंट में लाने पर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी पर तनकीद करते हुए उन्हें हमास से जोड़ने वाली बीजेपी रहनुमा जब सिफारती मुहिम के लिए कुवैत पहुंचते हैं तो फलस्तीन की हिमायत में बयान दे देते हैं। मैं नहीं भूला हूं जब कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के अंदर ये बैग लेकर आई थी जिसके अंदर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र, उनके नेताओं, उनके सांसदों ने कितना हमला किया था प्रियंका पर, उन्हें हमास के साथ जोड़ दिया था। सबसे बड़ी बात, इस वक्त मुस्लिम देशों की यात्रा पर हैं करीब 57 सांसद, जिनमें से एक ये निशिकांत दुबे यानी डिग्री दुबे भी हैं। ये व्यक्ति कुवैत में है और यहां पर पैलेस्टाइन की तारीफ कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने प्रियंका गांधी वाड्रा को हमास के साथ जोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बैग में पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। अब यह व्यक्ति कुवैत में है तो पैलेस्टाइन की महानता के बारे में बोल रहा है। फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी $39 मिलियन जो है हमने रख रखा है जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहाँ बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम 2 नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। मैं इसे दोहरे मापदंड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशिकांत दुबे ने इसी बैग का जिक्र किया था। जी हां, जब संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा ये बैग लेकर आई थी तब तो प्रहार किया ही था। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशिकांत दुबे ने इस पुरानी तस्वीर का जिक्र किया था और क्या कहा था मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के फिलिस्तीन बैग लहराने के कारण वहां के आतंकवादी संगठन हमास ने पाकिस्तान जाकर इस फरवरी में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ कश्मीर दिवस मनाया। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या में भी हमास का नाम आ रहा है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस आतंकवादी संगठन के मन को बढ़ाकर हिंदुओं की हत्या कब तक कराएगी? सबसे बड़ी बात, अब तक पहलगाम में हमास का कोई लिंक सामने नहीं आया है। मगर निशिकांत दुबे, याद कीजिएगा, ये जब मुस्लिम देशों की यात्रा पर जा रहा था तब इसने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि इसका एक पूरा रिकॉर्ड है जहां वो हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करता है।
लगातार जहर उगलता रहता है। याद कीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम देशों की यात्रा पर जाना था और अपने आप को महान पेश करना था। इस व्यक्ति ने क्या कहा था, सुना जाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, इनको शर्म आती है निशिकांत दुबे आपको। दूसरी जानिब इन तनाज़ात से हटकर हालिया दिनों में भारत में उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान मौजूए बहस बने हुए हैं, क्योंकि वो भारत के पहले आला ओहदेदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भारत के जंगी तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ किया था। उनके इस एतराफ़ पर और सच बोलने पर भारत में तनकीद हो रही है कि आखिर सच बताने की ज़रूरत क्या थी, मगर साथ ही अब तैयारे गिरने पर नई नई मंतक़े दी जा रही हैं। भारतीय मीडिया में जंग की बातें करने वाले और कराची और लाहौर पर भारतीय हमले की झूठी खबरों पर जश्न मनाने वाले भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या भी अब भारतीय तैयारों के नुकसान पर यह कह रहे हैं कि अगर हमारे तैयारे गिरे भी हैं तो हमें क्या नुकसान होगा, हम तो अमीर मुल्क हैं। देखिए जंग से पहले और जंग के बाद का मौक़िफ़। बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। अगर जेट्स लॉस्ट भी हो गए तो यार हमें कौन सा सऊदी अरब या चाइना से पैसे मांग के खरीदने। चलो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट्स हमारे, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो गए। मैं 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 16 चले गए, 20 चले गए। हमारे लिए हाथ का मैल है यार, अमीर मुल्क है, अमीर मुल्क है। हमारी करीब 670-680 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या हुआ अगर चले गए जेट्स? तो वैसे तो यहां पे किसी को कुछ पता नहीं क्योंकि डिक्लेयर नहीं करा। अगर नहीं गए तो ठीक है, हाँ गए तो ठीक है, दैट्स इट। सिर्फ यही नहीं, गोदी मीडिया का एंकर कुछ दिन पहले ये दावा कर रहा था कि भारत ने पाकिस्तान को कंफ्यूज करने के लिए खिलौना फाइटर तैयारे भेजे थे, वो पाकिस्तान ने तैयारे समझकर गिराए हैं। और फिर अब गोदी मीडिया का एंकर कह रहा है कि तैयारा गिर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, पाक भारत सीज फायर के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने तासुर दिया था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की है, मगर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने से पहले बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग होती है और हालिया तनाज़े में ऐसा कुछ नहीं हुआ। There's a lot of space before that nuclear threshold is crossed. A lot of signaling before that. I think nothing like that happened. कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कराची में ज़ल्ज़ला आया, फिर कैदी भाग गए, अभी तक 125 कैदी मफरूर हैं, आखिर हुआ क्या, कैसे भागे, आपके सामने क्या रखेंगे ब्रेक के बाद। कराची में लांढी, मलीर और इतराफ के इलाकों में इतवार से पीर की रात तक 10 मरतबा ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से कई मकानात की दीवारों पर दरारें पड़ गईं और शहरी भी खौफजदा हो गए। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीर और मंगल की दरमियानी रात को 12:53 पर भी इन्हीं इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। इस दफ़ा भी कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक अजीब वाक़या ज़रूर पेश आया। रात 1 बजे के बाद खबरें आना शुरू हो गईं कि ज़ल्ज़ले की वजह से डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से कैदी फरार हो गए हैं। अमूमन कुदरती आफात या जंग की सूरत हाल में जेल की दीवारें गिर जाती हैं तो कैदियों के फरार होने के वाक़यात सामने आ जाते हैं, लेकिन ना तो ज़ल्ज़ला इस शिद्दत का था कि जिससे बड़े पैमाने पर कोई अफरा तफरी फैलती, ना ही मलीर जेल में ज़ल्ज़ले से कोई दीवार गिरी, ना कोई दरवाज़ा टूटा, बल्कि कैदी ड्रामाई तौर पर हंगामी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए जेल का दरवाज़ा खोलकर भाग निकले। मलीर जेल इंतज़ामिया का कहना है कि पीर की रात ज़ल्ज़ले के दौरान नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरिक्स के बाहर बिठाया गया था। ज़ल्ज़ले के बाइस हंगामा आराई शुरू हो गई तो कैदियों ने पुलिस एहलकारों से हाथापाई की और असलहा छीन कर फायरिंग भी कर दी। इस दौरान 216 कैदी फरार हो गए, जिनमें से 89 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम 127 कैदी ताहाल मफरूर हैं, जिनकी तलाश जारी है। शहरियों ने जेल से भागने वाले 2 कैदियों की वीडियो भी बनाई और उनसे बातचीत भी की। हाँ, जेल दौड़ के आ रहे हो? जेल सही है, जेल दौड़ के आ रहा है। 2.5 साल से जेल में, 2.5 साल से। हाँ, साथ ही नहीं मिले तो फायदा क्या? कितने बंदे आए हो? कितने तुम्हारे को पता होगा? पूरा जेल गया, पूरा जेल भाग गया। अभी हटा, मेहरबानी होगी ना, अभी हटा। ओके,
इस पूरे वाक़े में कैदी हलाक हुआ, जबकि 3 कैदी, 3 FC एहलकार और जेल पुलिस के 2 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि फरार होने वाले कैदी की मां उसे वापस जेल ले आई और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ल्ज़ले की वजह से कैदी भागे तो मेरा बेटा भी जेल से भागकर घर आ गया था। ले आया है, तुम लोगों के पास तो रखो, इसका गुनाह कोई भी नहीं था, बस हाथ से में इनको लेकर आया है। ये हमारा बेटा है, एक दूसरा इसका दोस्त है इधर का, उसका साथ आया है, उसको हम नहीं जानते हैं। बेटा वो भी हमारा बच्चा है, वो भी हमारा बेटा है, इसको कुछ नहीं करना। बेटा ये हादसे में वाकई से आ गया है, ये ऐसा बच्चा नहीं है, हम गरीब, हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम इसको रिहा करें। सुप्रिटेंडेंट मलिर जेल ने कैदियों के फरार होने के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। सुप्रिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट में बताया गया है कि हज़ारों कैदी ज़ल्ज़ले के खौफ के बाइस तोड़ फोड़ करते हुए निकले और रात 1:30 बजे के करीब कैदियों ने मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया। इस दौरान 216 कैदी फरार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों ने जेल, अस्पताल, इंटरव्यू बूथ, ई कोर्ट और मुख्तलिफ शोबों में तोड़ फोड़ भी की। फायरिंग के वाक़े में 12 कैदी और हमले के मुख्तलिफ अराकीन जख्मी हुए, जबकि इस दौरान फायरिंग से ताहिर खान नामी कैदी हलाक भी हुआ है। सुप्रिटेंडेंट मलिर जेल अरशद शाह ने बताया कि ज़ल्ज़लों के बाइस कैदियों में भी बेचैनी थी। कैदी खौफजदा थे कि छत ना गिर जाए। रात 11 बजे के बाद ज़ल्ज़ले का शदीद झटका आया। बैरिक में मौजूद कैदी खौफ और हिरास का शिकार हो गए थे। धक्कम-पेल में 150 अफराद ने दरवाजे पर जोर लगाकर ताला तोड़ा। मैं जब रात को वहां पहुंचा तो कैदियों ने मुझ पर हमला कर दिया। कैदी हुजूम बनाकर भागे तो वॉच टावर से फायरिंग की गई। FC के जवानों ने फायरिंग की तो बहुत से कैदी वापस आ गए। कुछ कैदी कॉलोनी की तरफ भागे, उस तरफ भी फायरिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ मचाने वाले कैदियों की तादाद 3,500 से 4,000 थी। दूसरी जानिब IG जेल खानाजात सिंध काजी नज़ीर ने बताया कि शहर में ज़ल्ज़ला आया था, जिससे बैरिक की दीवारों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान मलिर जेल में कैदियों ने हमला किया तो दरवाजे की कुंडी टूट गई। कैदियों ने जेल से बाहर आकर बाकी ताले भी तोड़ डाले और फरार हो गए। वज़ीर आला हाउस कराची में मलिर जेल से कैदियों के फरार के मामले पर इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि ज़ल्ज़ले के बाद कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। फरार होने वाले कैदी सरेंडर कर दें, वरना संगीन मुकदमा बनेगा। ज़ल्ज़ले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। बाकी ये गलत फैसला था और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। कैदियों को बाहर निकाला गया, 6,000 से ऊपर कैदी हैं मलिर जेल में। उनको जब बाहर निकाला गया और वो प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ली गई, जिसकी वजह से कैदी एक मौत की सूरत हाल अख्तियार की। उन्होंने जहाँ तक मुझे पता है हथियार भी छीने, फायरिंग भी हुई। एक कैदी की डेथ भी जब अभी तक मुझे पता है हुई है। 216 या कुछ कैदी निकल गए थे, 80 या 82 जो अभी तक सुबह तक मुझे पता था वापस पकड़ लिए गए हैं। मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे, कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट, कोई फॉरेनर इस जेल से नहीं भागा। जो अभी तक मुझे इत्तला है, मैं वैसे और कहूँगा वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि IG जेल को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि DIG जेल और सुप्रिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। वाक़े पर 2 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल IG शामिल होंगे। 24 घंटे के अंदर जो लोग वॉलंटियरली वापस आ जाते हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिनको पुलिस गिरफ्तार करके आएगी उनको जेल ब्रेक की दफात लगेंगी। 7 साल तक की सजा जो है वो है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है IG जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। DIG जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है और मजीद लोग भी जो उसके नीचे हैं वो भी सस्पेंड हुए हैं। और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची जो है वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कराएंगे। पूरी सूरत पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान, जो इस वक्त मलिर जेल के बाहर मौजूद है। राहिल, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर लॉ एंड ऑर्डर के मामलात आप कवर करते हैं, इन मामलात को जानते हैं। हुकूमत मुतमईन नहीं है। हुकूमत ने ज़ाहिर फिर कार्रवाई भी की है, IG जेल खानाजात को तब्दील कर दिया, DIG और सुप्रिटेंडेंट को जो है वो सस्पेंड कर दिया। एग्जैक्टली क्या इस वक्त अंदर की कहानी सामने आ रही है, क्योंकि हुकूमत ने भी मज़ीद इंक्वायरी का हुक्म दिया है? देखिए शाहजेब साहब, जो कल रात को प्रॉब्लम हुई वो यकीनी तौर पर एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हुई, और लेकिन उससे पहले जो है जब वो कैदियों को बाहर निकालना ही था तो जेल इंतज़ामिया को सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे, उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर में नफरी की इंतहाई कमी है। जो कल रात की नफरी थी वो यहाँ पर 220 की यहाँ पर नफरी तैनात थी, जबकि 6,000 यहाँ पर कैदी हैं। उसके अलावा अगर रेंजर्स और FC भी काउंट कर ली जाए तो भी 300 की तादाद पूरी नहीं होती। 300 के
के अंदर जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार हैं और जबकि यहाँ पे कैदियों की तादाद 6000 थी। तो यहाँ पे हमारी बात हुई हुक्काम से, तो ये बताते हैं कि जब कैदियों ने यह हंगामा राय शुरू किए तो वो तकरीबन 1000 से 2000 का मजमा था जो कि गेट की तरफ आना शुरू हुआ। बैरिक्स में जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है उनका मेन दरवाजे से बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता नहीं होता, उनको जिगजैग स्टाइल में रखा जाता है इसी किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए। और तकरीबन 4 लेयर जो है उन्होंने सिक्योरिटी की ब्रीच किए, उसके बाद फिर जाके वो मेन गेट पे पहुंचे और बाहर निकल गए। कैदियों ने सबसे पहले दरवाज़ा जो बैरिक्स के बाद होता है सबसे पहले दरवाज़ा उसको अबूर किया, उसके बाद माड़ी के 2 गेट थे उनको तोड़ा, वहाँ पे टॉर्चर किया पुलिस एहलकारों को, जबकि उसके साथ साथ जो वॉच टावर बने हुए वहाँ पर फिर FC एहलकारों ने फायरिंग करी। कुछ कैदी ज़रूर वापस हुए लेकिन अच्छी खासी तादाद में, जो कि बाद में फिर तादाद कन्फर्म की गई हुक्काम की जानिब से, 216 कैदी जो है वो फरार होने में कामयाब हुए। उसके बाद फिर उनकी जो है वो पकड़ धकड़ भी स्टार्ट हुई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कार्रवाई करी फौरी तौर पर। और उसके साथ ही अब जो हुक्काम बताते हैं कि 120 से ज़ायद की तादाद अभी भी जो है वो जेल में मिसिंग है, जो कि कल की तारीख में जेल के अंदर मौजूद थे। इस तमाम सूरत का एक पहलू तो ये भी है कि यहाँ पे जेल इंतजामिया की बहरहाल गफलत और लापरवाही सामने आई है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने चाहिए थे वो उस तरह से नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर नफरी की कमी है, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पे CCTV कैमरा जो कि सिक्योरिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं आज की जदीद दुनिया में, यहाँ पर जो वो कैमरे लगे हुए ज़रूर हैं, 8 से 10 कैमरे हमने देखे कि वो लगे हुए, लेकिन वो भी इंतहाई नाकार हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई जो है वो यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। जबकि इसके साथ साथ 6000 की नफरी के लिए अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 3 से 5 कैदियों पर एक पुलिस एहलकार जो वो लाजमी होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर नफरी की तादाद 1000 से भी ज़ायद होनी चाहिए थी, लेकिन महज 6000 की कैदियों की तादाद के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 220 की नफरी यहाँ पे तैनात थी। और उसके साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें कोई खतरनाक कैदी हैं या मामूली जराइम वाले कैदी हैं? ज़ाहिर है अगर कोई 125 के करीब कैदी इस वक्त और कोई क्रिमिनल्स थे और वो शहर में मौजूद हैं तो एक परेशानी की बात है, कुछ पता चला इस हवाले से? देखिए शाजिब साहब, जो यहाँ पे मुल्जिमान फरार हुए हैं उनकी लिस्ट भी हमने हासिल की थी, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो लोग देखने में आए वो पुलिस मुकाबले के मुल्जिमान उसमें शामिल थे, जबकि जो मंशियात फरोशी वाले हैं 69B 69C उसके भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे कैदी थे जो कि फ़रार होने में यहाँ से कामयाब हुए हैं। सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे जो इब्तदाई तौर पे मालूम चला था कि ज़लज़ले की वजह से जेल की दीवारें जो है वो उनमें क्रैक्स पड़ गए और दीवारें तोड़कर जो है वो कैदी फरार हुए, लेकिन ऐसा नहीं था। जो जेल की बाउंड्री वॉल है वो यहाँ पे बम प्रूफ बनी हुई है और कई साल हो गए, वो 40 से 50 फीट ऊंची है और जबकि उसकी मोटाई भी जो है वो तकरीबन 1 फीट के बराबर है। तो ये नामुमकिन सी बात है कि कैदी जो है वो इस इतनी ऊँची दीवार को फलांग कर चले जाए। तमाम के तमाम कैदी उन्होंने सबसे पहले जो बैरिक्स के बाद पहले गेट था वो तोड़ा और उसके बाद फिर माड़ी के 2 गेट थे और उसके बाद चौथा गेट, इन तमाम रुकावटों को अबूर करके जेल के मेन गेट से ही फरार हुए। ये तमाम के तमाम जो मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। हमारी पुलिस हुकाम से ही बात हुई, IG सिंध से ही बात हुई, तो ये बताते हैं कि मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं और शहर भर में भी जो है वो सर्च ऑप्शन किया जा रहा है, जबकि जो डेटा पुलिस हुक्काम के जो जेल हुक्काम के पास था उनके पास जो है वो तमाम मुल्जिमान का कवायफ होता है। जेल में आने वाले हर शख्स का जो है उनके पास एड्रेस वगैरह और टेलीफोन नंबर तमाम तरह चीज़ें होती है, वो तमाम की तमाम जेल हुक्काम की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी प्रोवाइड कर दी गई है। बहुत शुक्रिया। राहिल सलमान तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद आपके सामने हकाइक रखेंगे कि तफसीलात आ रही हैं कि ईरान अमरीका की मुआहदे के हवाले से तजवीज़ मुस्तरद कर सकता है, क्या मामला हैं? एक ब्रेक के बाद। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात अहम मरहले पर पहुंच गए हैं, ताहम अब तक दोनों ममालिक किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप पर उम्मीद हैं और उनका दावा है कि जल्द ही कोई हल निकल आएगा, जबकि हफ्ते को मुज़ाकरात के सालिस ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका की जानिब से नए जौहरी मुआहदे की तजवीज़ ईरान को पेश कर दी थी, जिसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि ईरान मुमकिना तौर पर जौहरी मुआहदे की इस नई अमेरिकी तजवीज़ को मुस्तरद कर देगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप पहले से ही कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ मुआहदा नहीं होता तो फिर उनके पास फौजी कार्रवाई का ऑप्शन भी मौजूद है, जबकि सदर ट्रंप के अहम इत्तेहादी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू शुरू से ही इन मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं और इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है और फिर ये भी रिपोर्ट हुआ और ट्रंप ने भी इस बात को माना कि उन्होंने नेतन्याहू को ऐसी किसी भी कार्रवाई से मना किया है। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई थी कि सऊदी अरब ने भी ईरान को खबरदार करते हुए कहा जौहरी मुआहदा करें वरना ईरान को इसराइली हमलों का सामना करना पड़ सकता है। सारी सूरत हाल में अब ईरान अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद करने पर गौर कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक पीर को एक ईरानी सिफारतकार ने कहा है कि ईरान दहाइयों पर मुहित जौहरी तनाज़े के हल के लिए पेश
अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करने जा रहा है। ईरानी सिफारतकार ने अमरीकी तजवीज़ को नॉन स्टार्टर करार देते हुए कहा कि इसमें ना तो ईरान के मफादात को मद्देनजर रखा गया है और ना ही इससे अमरीका की यूरेनियम अफजोदगी के मौक़िफ़ में कोई नरमी दिखाई देती है। ईरान की मुज़ाकराती टीम के करीब समझे जाने वाले इस सीनियर ईरानी सिफारतकार ने मजीद बताया है कि ईरान अमरीकी तजवीज़ के जवाब में एक मनफी रद्द-ए-अमल तैयार कर रहा है, जिसे अमरीका की पेशकश को मुस्तरद करने के तौर पर भी लिया जा सकता है। अमरीका की जानिब से नए जौहरी मुआहदे की तजवीज़ हफ्ते को तेहरान के मुख्तसर दौरे के दौरान ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को पेश की थी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अब तक बातचीत के 5 दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बड़े इख्तलाफात बाकी हैं, जिनमें सबसे अहम ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफजोदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और अपनी मौजूदा ज़ख़ीरा शुदा आला सतह की अफजोदा यूरेनियम को बैरून मुल्क भेजने से इनकार है। ईरानी सिफारतकार के मुताबिक इस तजवीज़ में अमरीका का ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ और पाबंदी हटाने के बारे में कोई वाज़ेह बात नहीं की गई है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान जल्द ही इस तजवीज़ पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने ईरान पर जोर दिया है कि वो इस मुआहदे को कबूल करे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने एक बयान में कहा कि सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को कभी जौहरी बॉम्ब हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने ईरान को एक तफसीली और काबिल कबूल तजवीज़ भेजी है और उनके मुफाद में है कि वो इसे कबूल करें। ईरान का मुतालबा है कि अमरीका की जानिब से आयद की गई तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ जो उसकी मईशत को नुकसान पहुँचा रही हैं, लेकिन अमरीका का मौक़िफ़ है कि जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सिफारतकार ने मज़ीद बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की निगरानी में ईरान की जौहरी मुज़ाकराती कमेटी ने अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लेने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर एक तरफ़ा करार दिया है, जो ईरान के मफादात को पूरा नहीं करता और इसीलिए ईरान इस तजवीज़ को एक नॉन स्टार्टर समझता है और उसका मानना है कि अमरीका ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात के साथ ये मुआहदा एकतरफ़ा तौर पर ईरान पर मुसल्लत करना चाहता है, जो कि ईरान के लिए एक नुकसानदेह मुआहदा होगा। इसके अलावा CNN ने भी ईरानी ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने CNN को बताया है कि हालिया दिनों में ईरान को पेश की गई जौहरी मुआहदे की नई तजवीज़ बेरब्त और गैर मरबूत है, जबकि इन मुज़ाकरात से वाकिफ़ ज़राए का कहना है कि नए मुआहदे के लिए जारी बातचीत की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है और ऐसा लगता है कि मुआहदा तय पाने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पसे पर्दा नाउमीदी सदर ट्रंप के इस बयान से मुख्तलिफ है, जब गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने अवामी तौर पर कहा था कि अमरीका हल के बहुत करीब है, जबकि CNN ने मज़ीद लिखा है कि अमरीका ने मुआहदे के लिए अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है, ख़ासतौर पर यूरेनियम की अफजोदगी के मामले पर। नई अमरीकी तजवीज़ के मुताबिक अमरीका ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में सरमायाकारी कर सकता है और अमरीका एक बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम में शामिल हो सकता है, जो महदूद मुद्दत के लिए ईरान के अंदर कम सतह की यूरेनियम अफजोदगी की निगरानी करेगा। ये कंसोर्शियम मुमकिना तौर पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर मुश्तमिल होगा। वाज़ेह रहे कि पहले अमरीकी आला हुक्काम का कहना था कि किसी भी नए मुआहदे के तहत ईरान के अंदर यूरेनियम की अफजोदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ईरान से मुतालबा किया गया था कि वो अफजोदा यूरेनियम सिर्फ दरामद करे, जिसे ईरान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। जबकि नई तजवीज़ में महदूद पैमाने पर कम सतह की यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त दिए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन यह मौक़िफ़ अमरीका और इसराइल के ईरान मुखालिफ हलकों को नाराज़ कर सकता है और ये 2015 के जौहरी मुआहदे की तर्ज पर वापस जाने के बराबर है, जिससे सदर ट्रंप ने खुद एकतरफ़ा तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम पीर को ही सदर ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमारे मुमकिना मुआहदे के तहत ईरान को यूरेनियम की किसी भी सतह पर अफजोदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे में ईरानी हुक्काम ने बारहा कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम की तजवीज़ पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि ईरान को अपनी अफजोदगी की सलाहियत पर मुकम्मल इख्तियार हासिल रहे। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने नई अमरीकी तजवीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पहली नज़र में ही ये तजवीज़ बेरब्त, गैर हकीकत पसंदाना और हद से ज़्यादा मुतालबात पर मबनी महसूस होती है और अब तक बातचीत की नाकामी की असल वजह अमरीकी मौक़िफ़ का मुसलसल बदलना है और इसी वजह से यह काम पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ईरानी ओहदेदार ने दावा किया कि यह नई तजवीज़ उन बातों से बिल्कुल मुतसादिम है जो 5वें दौर के मुज़ाकरात में तय पाई थीं। वाज़ेह रहे कि 23 मई को रोम में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर हुआ था। इसके बाद दोनों फरीकों ने कहा था कि जल्द दोबारा मुलाकात होगी, ताहम अब ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर गैर यकीनी है और यह मुलाकात शायद हो ही ना सके। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस गजा से फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर बेदखल करके पूरे इलाके पर कब्जे के मुतनाज़ मंसूबे पर तेज़ी के साथ अमल कर रही हैं और इस मंसूबे के तहत इसराइल ना सिर्फ पूरे गजा में शदीद बमबारी कर रहा है, बल्कि वो पूरी मंसूबाबंदी के साथ फ़लस्तीनियों की भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है।
पहले इसराइल ने तकरीबन 3 माह तक गजा पहुंचने वाली बैनुल-अक़वामी इमदाद को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया और फिर सख्त आलमी मुखालफत के बावजूद इमदाद की तकसीम का एक मुतनाज़ प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इमदादी तंजीमों ने सख्त तनक़ीद की थी और ख़बरदार किया था कि इस पूरे प्रोग्राम से गजा में मौजूदा इमदादी कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खदशा है और इससे खुराक की रसाई गजा के चंद इलाकों तक महदूद हो जाएगी और गजा के शहरियों को इमदाद हासिल करने के लिए तवील फासला तय करने के साथ साथ इसराइल की फौजी चौकियों से गुजरना होगा, जिससे उन पर इसराइली हमलों का खदशा है और अब ये खदशात सच साबित हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में 4 मुख्तलिफ मकामात पर इमदाद की तकसीम के इस मुतनाज़ इसराइली प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया था और तब से लेकर अब तक गजा में इमदाद की तलाश में इन मराकिज़ पर पहुँचने वाले कम अज़ कम 102 फ़लस्तीनी इसराइली फायरिंग से शहीद हो चुके हैं, जबकि आज भी गजा में इमदाद हासिल करने की कोशिश के दौरान इसराइली फायरिंग से कम अज़ कम 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनी शहरियों पर फायरिंग टैंकों, क्वाडकॉप्टर, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए की है और ये फायरिंग इमदादी मरकज़ से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर हुई है। इससे पहले कल भी इसी तरह के वाक़यात में कम अज़ कम 3 फ़लस्तीनी इसराइली फोर्सेस का निशाना बने थे, जबकि इतवार को भी इसी तरीक़ाकार के तहत इसराइली फोर्सेस ने रफ़ा के इमदादी मरकज़ आने वाले 31 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था, जबकि इस हमले में 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। इस वाक़े इंतहाई दिलखराश मनाजिर सामने आए हैं। इतवार को इसराइली फोर्सेस ने इमदाद की तलाश में आने वाले फ़लस्तीनियों पर किस तरह से फायरिंग की, बरतानवी नशरियाती इदारे चैनल 4 ने अपनी रिपोर्ट में वाक़े की तफसीलात बताई। या अल्लाह, या अल्लाह, ये सुबह सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले के मनाजिर हैं कि जब फ़लस्तीनी अवाम मिट्टी में लेट कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ इतवार को इमदाद तकसीम करने की 8 जगहों पर फायरिंग करके 30 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फैमिलीज़ अब तक अपने प्यारों की लाशें वसूल कर रही हैं ताकि उन्हें दफना सकें। जो कुछ हुआ उस पर भी तनाज़ा खड़ा हो गया है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उसने फ़लस्तीनियों पर इमदाद तकसीम करने की जगह पर फायरिंग नहीं की, मगर मुतादिद गवाहों ने बताया है कि जब वो इमदाद तकसीम करने वाले मकाम की तरफ बढ़े तो उन पर फायरिंग की गई और ये जगह इसराइल की तरफ से इमदाद की तकसीम के लिए बनाई गई गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की थी। अमेरिका और इसराइल ने हमें क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यहाँ जाओ और खाना और पानी पियो, मगर जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें गोलियाँ मारी गईं। क्या ये इंसाफ है? जो वहाँ खाना लेने गए थे वो मारे जा चुके हैं। इसराइल की गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने अभी तक गजा में इमदाद तकसीम करने के लिए 4 इलाके मुतय्यन किए हैं, मगर इतवार को सिर्फ इस एक साइट पर सुबह 6 बजे इमदाद तकसीम करने का बताया गया था, लेकिन रात 12 बजे के बाद से ही हज़ारों लोग इस जगह से 1 किलोमीटर दूर एक जंक्शन पर जमा होना शुरू हो गए थे। उनमें से अक्सर ने बताया कि वो बहुत दूर शुमाली इलाके से यहाँ पहुँचे थे और जैसे जैसे मजीद लोग जमा होते गए तो आगे बढ़ने के लिए दबाव बढ़ता गया। गवाहों ने बताया कि हुजूम आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की जानिब इमदाद लेने के लिए बढ़ता रहा, यहाँ तक कि अचानक साइट के करीब एक टैंक से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, फिर मजीद वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। सुबह 3:30 बजे तक हुजूम इधर उधर भाग रहा था और सिपाहियों, टैंक्स और नेवी की बोट्स हर तरफ से फायरिंग कर रही थीं और यही वो वक्त था जब गोलियों से जख्मी होने की रिपोर्ट सामने आई। मगर फिर भी हुजूम इमदाद लेने के लिए आगे बढ़ता रहा और फिर बहुत सारे लोग मारे गए, मगर इसके बावजूद बहुत से लोगों ने इमदाद लेने के लिए साइट पर पहुँचने की कोशिश की। सैकड़ों लोग सुबह 5 बजे वहां पहुंच गए और विटनेसेस के मुताबिक चंद मिनट में सारी इमदाद खत्म हो गई। इस वाक़े से पता चलता है कि गजा में इमदाद की तकसीम का नया निज़ाम इतनी बड़ी आवाम में इमदाद की तकसीम के काबिल ही नहीं है। हम वहाँ सुबह 4 बजे से फर्श पर पड़े थे क्योंकि क्वाडकॉप्टर से हमारे ऊपर फायरिंग की जा रही थी। इसराइली हम पर फायरिंग कर रहे थे। औरतें, बच्चे और तमाम लोग जमीन पर लेटकर बचने की कोशिश कर रहे थे और फिर आखिर में सिर्फ हमें ये इमदाद मिल पाई है। अस्पताल में तकरीबन 180 जख्मियों को लाया गया है, जिनमें से अक्सर को गोलियां लगी हुई हैं, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि उन्होंने सिविलियंस पर इमदाद की तकसीम की साइट के इलाके में कोई फायरिंग नहीं की। उनका कहना है कि वार्निंग शॉट्स चलाए गए थे, मगर जब उनसे पूछा गया कि इतने सिविलियंस को कैसे गोलियां लगीं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कल इसराइल ने यह फुटेज जारी करके कहा कि हमास इमदाद की तकसीम में रुकावटें डाल रही थी। बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट्स को तो गजा में रसाई नहीं दी जा रही, मगर गजा के सहाफ़ियों का कहना है कि इस फुटेज में वो मुसल्लह गैंगस्टर नजर आ रहे हैं जो लूटी हुई इमदाद को खान यूनुस में फरोख्त कर रहे हैं। इसी दौरान इसराइली फौज गजा में ज़मीनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि गजा का वाहिद डायलिसिस सेंटर तबाह किया जा रहा है। करीब ही इंडोनेशियन अस्पताल का अमला भी इस खौफ में अस्पताल से निकल रहा है कि शायद इस अस्पताल को भी इसराइली फौज तबाह कर देगी।
ये वाक़या बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस बन रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमें और नुमाइंदे गजा में इमदाद की तकसीम के इस अमल को गैर इंसानी करार दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इतवार को होने वाले वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। BBC के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पीर को अपने एक बयान में कहा कि मैं गजा में इमदाद हासिल करने की कोशिश के दौरान फ़लस्तीनियों के कत्ल और ज़ख्मी होने की खबरों पर शदीद परेशान हूँ। मैं इन वाक़यात की फौरी और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करता हूँ और ज़िम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इसके अलावा पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह वॉल्कर टर्क ने BBC से बात करते हुए कहा कि इस वक्त गजा में जिस तरीके से इंसानी इमदाद फराहम की जा रही है वो नाकाबिल कबूल और गैर इंसानी है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे यह जाहिर होता है कि गजा में आम शहरियों की ज़िंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जा रही है। ज़रा तसव्वुर करें, ऐसे लोग जो तकरीबन 3 माह से खुराक और अद्वियात के लिए बेहद परेशान हैं, उन्हें मदद हासिल करने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। ये इंतहाई ख़तरनाक हालात का सामना करना पड़ता है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने आज कहा है कि गजा में आम शहरियों को खुराक और इमदाद तक रसाई से रोकना जंगी जुर्म हो सकता है। इसराइल गजा में गुज़िश्ता 15 माह से जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है और अब आम शहरियों को इमदाद की फराहमी से रोककर इसराइल एक नए जंगी जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है और इसका एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। जबकि अब इसराइल के अहम तरीन इत्तेहादी अमरीका के साबिक सदर बाइडन के दौर में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर, जो पहले गजा में इसराइली इक़दाम का दिफा करते रहे हैं, उन्होंने भी एतराफ़ कर लिया है कि इसराइल ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। I think it is without a doubt true that Israel has committed war crimes. You wouldn't have said that at the podium. Yeah, look, because when you're at the podium, you're not expressing your personal opinion. You're expressing the conclusions of the United States government. The United States government had not concluded that they've committed war crimes. Still have not concluded that. But your personal view is they have. And they were while you were there. But let me qualify that. There are two ways to think about the commission of war crimes. One is if the state has pursued a policy to deliberately committing war crimes or is acting reckless in a way that aids and abets war crimes. And that, I think, is an open question. I think what is almost certainly not an open question is that there have been individual incidents that have been war crimes where members of the Israeli military have committed war crimes. आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।